اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذ لکبریائہ عقدات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس ماہ رمضان المبارک کا عشرہ اولا یعنی پہلا عشرہ، جسے عشرہ رحمت بھی کہتے ہیں، آج اپنے 10ویں اور آخری مرحلے میں آ چکا ہے۔ اس مہینے کے 10ویں روز اس پروگرام کے ساتھ، جسے ہم نے پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، جس کا نام ہے اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ، اس پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید مدثر علی کرمانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور گزشتہ 9 دنوں کی تقاریر کو اگر مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پوری کائنات میں وہ واحد ہستی جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے اور جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عبادت جبراً نہیں کرواتا، بلکہ رحمانیت اور رحیمیت کے صدقے سے، اور رحمانیت اور رحیمیت اور کریمیت کے طفیل ہمارے اوپر یہ حجت قائم کرتا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مہربانیاں اور رحمتیں عطا کرنے والا ہے، نوازشات اور کرم کی بارش کرنے والا ہے، اور مصیبتوں سے، الجھنوں اور پریشانیوں سے نکالنے والا ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، لہذا اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، سائنٹیفک دریافت جتنی بھی ہیں ان کی روشنی میں، کہ دنیا کے جتنے بھی مصنوعی خاکے ہیں، تصاویر ہیں، اگر انسان انہیں خلق کرے، ان کی تصویر بنائے، مصوری کرے، تو ان کو ویسا نہیں بنا سکتا جیسا اللہ نے اس انسان کو خلق کیا ہے۔ اس انسان کے اندر اس کی بناوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں روح بھی ہے، دماغ میں عقل اور فکر بھی ہے، اور دل کے اندر جذبہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے مختلف سائنسی دریافتوں کو دیکھا، فزکس کی، میڈیکل سائنس کی،
اور دیگر آرٹ اینڈ ڈیزائن کی مثالوں کو دیکھا کہ جن کے تحت ہم نے جو ملحدین اور مشرکین کے اعتراضات ہیں ان کا رد پیش کرنے کی کوشش کی۔ کل کی تقریر میں خاص طور پر انسان کی خلقت کا میں نے قرآن مجید سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اللہ انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے ہمیں، چونکہ اس سے قبل کہ ہم اس کی عبادت کرتے، چونکہ ہم جاہل تھے، ابھی اس حالت اور کیفیت میں نہیں تھے کہ اس کی عبادت کر سکتے، کیونکہ وہ معرفت ابھی ہمیں اس کی عبادت کی حاصل نہیں تھی، تو اس وقت بھی اس نے اس کم سن بچے کو، جو کچھ نہیں جانتا ہوتا لہذا عبادت بھی نہیں کر سکتا، اس کم سن بچے کو کئی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے محفوظ کر رکھا، اور اسی بچے کو کئی نوازشات اور عنایتیں عطا کیں، رحمتیں عطا کیں۔ لہذا وہ اللہ، وہ پروردگار عالم ایسی ہستی ہے جو عبادت کروائے بغیر بھی اپنے اس بندے کو، اس انسان کو، اپنی اس مخلوق کو رحمتیں اور نعمتیں اور کرم نوازشات عطا کرتا ہے، لہذا شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اسی حوالے سے آج جو میں نے آیہ مبارکہ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اس کا اشارہ اسی طرف ہے۔ قرآن مجید کی یہ مشہور آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا تعلق سورہ مائدہ سے ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور اس کی وہ آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 76 ہے، 76۔ تو سورہ مائدہ کی اس 76ویں آیت میں پروردگار عالم تعجب فرماتے ہوئے ایک تعجب کے انداز میں ہمارے سے، پوری انسانیت و آدمیت سے سوال کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعبدون، اے حبیب ان انسانوں سے کہیے، کہ وہ کوئی بھی ان کا مذہب ہو، ان انسانوں سے کہیے، قل ان سب سے کہیے، اتعبدون کیا تم ان کی عبادت کرنا چاہو گے یا کرتے ہو؟ قل اتعبدون، اے حبیب ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، ان انسانوں سے، کیا تم ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو یا کرو گے یا کرتے ہو؟ کن کی؟ ما لا یملکو لکم، جو تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی ملکیت نہیں رکھتے۔ ما لا یملکو لکم، ایک لفظ معذرت کے ساتھ بھول گیا، دوبارہ آیت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے حبیب کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، ان لوگوں سے کہیے کیا تم ان کی عبادت کرو گے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے حبیب ان سے کہیے کہ کیا تم ان کی عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ دوسروں میں سے ان کی عبادت کرو گے۔ ما لا یملکو لکم، کہ جن کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ تمہارے اوپر ملکیت رکھ سکیں۔ یہاں پر ملکیت کا لفظ تمثیلاً، مثالاً، محاوراتی طور پر استعمال ہوا ہے۔ یملکو، ملکیت، کیا مطلب ہوا؟ تمہارے اوپر ملکیت نہیں رکھتے، یعنی تمہارے اوپر اتھارٹی نہیں رکھتے، تمہارے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے۔ اے حبیب قل ان سے کہیے، اتعبدون کیا تم ان کی عبادت کرو گے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرو گے یا کرنا چاہو گے یا کرنا چاہتے ہو۔ ما لا یملکو لکم، جو تمہارے اوپر اتنی بھی اتھارٹی، اتنا بھی کنٹرول اور اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، اتنی ملکیت اور اختیار نہیں رکھتے۔ انسان کا اختیار اس کی ملکیت پر ہوتا ہے نا، اس لیے لفظ ملکیت اللہ نے استعمال کیا محاورتاً۔ جو تمہارے اوپر ملکیت نہیں رکھتے، اتنا بھی ملکہ نہیں رکھتے، اتنا بھی اقتدار اور اختیار اور کنٹرول نہیں رکھتے۔ کیا کنٹرول نہیں رکھتے؟ ما لا یملکو لکم ضرا ولا نفعا، کہ تمہیں کسی قسم کا ضرر پہنچا سکیں یا کسی بھی قسم کا نفع پہنچا سکیں۔ ضرا ولا نفعا، ان کی عبادت کرنا چاہو گے اے لوگو اللہ کے علاوہ، کہ جو
तुम्हें किसी भी किस्म का नफ़ा या नुकसान पहुंचाने का कंट्रोल और मलिका नहीं रखते, ये अथॉरिटी नहीं रखते कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकें, ज़रर पहुंचा सकें या नफ़ा फ़ायदा पहुंचा सकें। यानी और इस आयत के इख्तिताम में फिर अल्लाह ने दो अपने तारीफ़ के अंदर लफ्ज़ रखे, और वो लफ्ज़ हैं वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। तो वो अल्लाह ही तो है जो हर शय सुनता है और हर शय जानता है। अब मैं इस मरतबा पहले आयत का मफहूम बयान करूंगा और आखिर में समीउल अलीम के ऊपर आऊँगा कि अल्लाह ने आखिर में ये दो लफ्ज़ क्यों रखे। मैं जितनी भी आयत गुज़श्ता 10 दिन से पेश करता आ रहा हूँ, उनके अंदर ये मेरी एक प्रैक्टिस रही, आदत रही है कि जो ये अल्फाज अल्लाह के अस्माए हुसना में से आयत के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजह बयान करता हूँ इस्तेमाल की, कि अल्लाह ने यहाँ पर यह लफ्ज़ क्यों रखा, हिकमत क्या है इस लफ्ज़ की। इन दो अल्फाज पर समीउन अलीम पर मैं आखिर में आऊँगा कि अल्लाह ने ये लफ्ज़ यहाँ पर क्यों रखे और इनका आयत के मफहूम के साथ जोड़ और वास्ता और लिंक क्या है। इस आयत के अंदर अल्लाह वाज़े करना चाह रहा है एक बात जो मैं पहले तलखीस के तौर पर पेश कर चुका हूँ, कि इबादत उसकी की जाती है और करनी चाहिए जो आपको नफ़ा और नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता हो। इसलिए अल्लाह ने ताजुब किया है कि जो तुम्हें नफ़ा और नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता या सकते, क्या तुम उनकी इबादत करोगे या करना चाहोगे। यानी इशारा है जो बुतों के सामने पूजते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, तो उनके सामने तुम झुकना चाहते हो। या ऐसे लोग भी, उन लोगों की तरफ भी इशारा है जो अपने सामने झुकाना चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि असल नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाला अल्लाह है। वो खुद भी अल्टीमेट ताकत नहीं रखते नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की। तो उसी तरफ अल्लाह ने इशारा किया है और मतवज्जो किया है इंसानियत को कि जो किसी भी किस्म का नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ही ना रखता हो, क्या तुम उनके सामने झुकने की कोशिश करोगे अल्लाह को छोड़कर, और उनकी इबादत करने की कोशिश करोगे अल्लाह के अलावा। इस आयत के आखिर में जो अल्लाह ने दो लफ्ज़ रखे हैं समीउन अलीम, इसको बयान करने के लिए मैं एक लफ्ज़ जो इबादत है, कि जिस वजह से इस आयत के ज़रिए अल्लाह ने अपनी तौहीद को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करने की कोशिश की है और साबित करने की कोशिश की है कि इबादत उसी की जा सकती है जो हर किस्म का नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता हो। और कल मैंने अर्ज़ किया था कि जो नफ़ा पहुंचाए उसे रहमान कहते हैं, सबसे बढ़कर मेहरबान, बेनिफिशेंट, द मोस्ट बेनिफिशेंट। और जो नुकसानात से बचाए उसे रहीम कहते हैं, मोस्ट मर्सीफुल, सबसे बढ़कर मेहरबान और निहायत रहम वाला। तो ये मफहूम था रहमान और रहीम का, कि जिस वजह से अल्लाह ने वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, वहाँ भी रहमान और रहीम इस वजह से आया। वहाँ पर रहमान और रहीम आया है और यहाँ पर नफ़ा और नुकसान ज़र्रन वला नफ़अन ये लफ्ज़ आए हैं। माना वही है, मफहूम वही है, बस अल्लाह ने लफ्ज़ बदल दिए हैं। ये अल्लाह की हिकमत है, अंदाज है। अब जब अल्लाह ने मफहूम इबादत का बयान कर दिया है कि इबादत उसकी की जाती है जो हर किस्म का नफ़ा और नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता हो और हर किस्म के नुकसान से बचाने की भी सलाहियत रखता हो, तो इस वजह से अगर आप गौर फरमाएं, फिर मैं आखिरी दो अल्फाज की तरफ जाऊंगा कि उनकी असास आखिर में क्या है समीउन अलीम की। इंसान इबादत अगर किसी की करेगा, अब जरा इबादत को अगर समझ लेंगे तो आपको आखिर में समीउन अलीम भी समझ में आ जाएगा। अगर इंसान किसी की इबादत करेगा अल्लाह के अलावा या अल्लाह को शुमार करके भी या अल्लाह के अलावा, तो इबादत अगर आप फिजिकली करेंगे, फिजिकल तौर पर इबादत कर रहे हैं तो हर शख्स आपको देख रहा है। वर्बली अगर आप इबादत कर रहे हैं, इबादत करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अगर किसी की इबादत कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, किसी को पूज रहे हैं, किसी के सामने झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो ज़रूरी है सिर्फ सजदा करने से, झुकने से इबादत नहीं होती। आपकी कुछ खास जेस्चर्स जो फिजिकल जेस्चर्स होते हैं, लाजमी नहीं कि वो इबादत का मफहूम दे रहे हों।
ایک फिजिकल जेस्चर इबादत का भी हो सकता है और वही फिजिकल जेस्चर ताज़ीम का भी हो सकता है। जिस तरह सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी था, इबादत का नहीं था। तो लिहाजा ये ज़रूरी है, अगर इबादत को समझना हो तो ज़ुबान से इकरार करना लाजमी हो जाता है। अब ज़ुबान से इजहार करें और इकरार करें और उससे अपने उस अमल की निशानदही करें और गवाही दें उस अमल की कि आप ये जो अमल कर रहे हैं ये इबादत का है या नहीं। तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस अमल की हुई या कॉल की ज़्यादा हुई? कॉल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आपके अमल के साथ कॉल आपका होगा तो वो निशानदही करेगा कि आपका ये जो अमल था इबादत का था या नहीं था। इसीलिए अल्लाह ने मतवज्जो करना चाहा है वर्बल इबादत की तरफ। इबादत के लिए ज़रूरी है कि अगर फिज़िकली इंसान इबादत कर रहा है तो वर्बली भी साथ कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिससे जाहिर हो, निशानदही हो इस बात की कि इंसान वाकई इबादत ही कर रहा है, इंसान का ये फिजिकल अमल और जेस्चर इबादत का है, किसी और चीज़ का नहीं है। अच्छा, तो अगर वर्बली मैं इबादत करूँगा तो वो भी दो तरह से की जा सकती है, बाय माउथ, बाय टंग, ज़ुबान के ज़रिए दो तरह से वर्बल इबादत होती है। एक बावाज़ बुलंद, जैसे मैं अभी आप हजरात के सामने खिताबत कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, वाज़े तौर पर मेरी बात को, मेरी आवाज़ को, मेरे अल्फाज को सुन सकते हैं। एक ये है अंदाज बयान का, लिसानी तौर पर, कौली तौर पर, वर्बल तौर पर। और वर्बल तौर पर इबादत का एक अंदाज ये भी होता है कि आप मुंह के अंदर ही कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कह रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, अपने मुंह के अंदर, ज़ुबान के अंदर ही, ऊंची आवाज़ में ना बोलें, मुंह के अंदर अंदर आप कुछ बात कर रहे हो जो इबादत का मफ़हूम रखती हो, या ज़ुबान या मुंह के अंदर भी ना बात करें, दिल के अंदर भी बात कर रहे हो। हम कभी कभार अल्लाह की इबादत दिल के अंदर कर रहे होते हैं, अल्लाह के नाम हम दिल के अंदर, दिल ही दिल में अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, दिल में अल्लाह के नाम ले रहे होते हैं, ये भी इबादत का तरीका है वर्बल। तो अल्लाह ने एक ख़ास वजह से आखिर में ये दो लफ्ज़ रखे हैं, समीउन अलीम, कि देखो अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई और नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अल्लाह के अलावा क्या तुम किसी और की इबादत करना चाहोगे, जो आयत का तर्जुमा है, क्या अल्लाह के अलावा तुम किसी उन लोगों की इबादत करना चाहोगे जो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना तुम्हें किसी नुकसान से बचा सकते हैं? तो फिर जान लो कि अगर तुमने ऐसा किया, अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर तुमने किसी और की इबादत करने की कोशिश की, तो अगर वर्बली करोगे बावाज़े बुलंद, तो इन्नहु हुवस समी, वो सुन लेगा, वो सब सुनने वाला है। और अगर तुमने पोशीदगी के साथ दिल ही दिल में किसी और की इबादत और बंदगी करने की कोशिश की, परस्तिश करने की कोशिश की, तो इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सब जानने वाला है। तुम्हारे दिल के अंदर या मुंह के अंदर भी कुछ हुआ उसको भी जान लेगा। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, आखिर में ये दो अल्फाज इसलिए रखे अपनी जलालत दिखाने के लिए कि देखो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक है ही नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और में यह सलाहियत है ही नहीं कि वो नफ़ा और नुकसान पहुँचा सके या नफ़ा और नुकसान से बचा सके। लिहाजा इबादत के लायक अल्लाह ही है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना चाहोगे और करोगे तो अल्लाह समी भी है, सुन भी लेगा, और अगर अंदर रखते हुए बंदगी करोगे अल्लाह के अलावा किसी और की, तो अल्लाह जान लेगा, वो अलीम है। अलीम उस जानने वाले को कहते हैं। एक होता है आलिम, अरबी ज़ुबान में इल्म रखने वाला, आलिम आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन अलीम उस आलिम को कहते हैं जो हर पोशीदा बात का भी इल्म रखता हो। तो इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नहु हुवस समी, वो सब सुनता है। इन्नहु हुवस समी, चाहे ऊंची आवाज़ में बोली गई बात हो या हल्की आवाज़ में आहिस्तगी के साथ बोली हुई आवाज़ हो, उसे सुन लेगा। इन्नहु हुवस समी, सब सुनने वाला है। और अल अलीम, वो सब जानने वाला है, जो तुम्हारे दिल के अंदर होगा वो भी जान लेगा। इसलिए खबरदार उसके अलावा किसी और की इबादत करने की कोशिश ना करना, चाहे फिजिकली या वर्बली। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।